الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما الحمدللہ اللہ کے خاص فضل سے اور اس کی کرم سے مہربانی سے ایک نئے دن میں اس نئے سبق کے ساتھ اس کے کلام کے آگے بیٹھنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے خاص اس کے فضل و کرم سے ہی ہوتا ہے اور یہ خاص اللہ کا فضل و کرم اللہ خود اپنے بندوں کے لیے پسند بھی کرتے ہیں اور بندوں کا اخلاص اسے اچھا بھی لگتا ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے انسان کے بارے میں کہ کامیاب وہ انسان ہو سکتا ہے مفہوم ہے آیات کا کہ کامیاب وہ انسان ہو سکتا ہے جو اللہ کے پاس لے کر آیا سلامت دل اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا اب انسان سوچ سکتے کہ سلامتی والا دل کون سا ہو سکتا ہے سلامت دل کسے کہیں گے تو دوسری جگہ پھر فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اس جاء ربہ بقلب سلیم جب وہ اپنے دل کے سلامتی کے ساتھ اللہ کے پاس آئے اپنے دل کو سلامت لے کر تو وہاں پر وہ معیار بتا دیا کہ دل کی سلامتی کس سے کہتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا ابراہیم علیہ السلام کا دل کیا تھا صرف اللہ نے بیان کیا ان کی وہ یکسو تھے صرف اللہ کی طرف توجہ کرنے والے اولاد کو ملک کو بیوی کو مال اسباب کو سب کو چھوڑ دیا کس کے لیے اللہ کے لیے قربانیاں دی بیٹے کو ذبح کرنا قبول فرمایا اللہ کے حکم پر بیوی کو اور بچے کو ایسے میدان میں چھوڑ کر آئے جہاں پر نہ انسان ہے نہ جانور ہیں ایک بیابان ہے کہ دشت ہے اللہ کے لیے چھوڑا ہے فرمایا ایسا دل لے کر آؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور اللہ نے خطاب فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا وفا ابراہیم وفادار ہے تو یہ اللہ کو پسند ہے انسان کی کیفیات اور اس کے لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر طریقے بتائے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کیسے کیا جائے اپنے دل کو سالم کیسے کیا جائے سالم اللہ کے پاس لے کر کیسے جایا جائے اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما دے جس میں دنیا کی محبتیں نہ ہو جس میں دنیا کو اہم سمجھنا نہ ہو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اہم سمجھنا ہو جس میں وہ جذبات ہوں کہ جب ہم اللہ کے لیے کچھ بھی کر سکیں دنیا کو چھوڑ سکیں اپنی محبتیں اپنی خواہشات اپنی پسندیدگیاں سب اللہ کے لیے قربان کر سکیں یہ قلب سلیم اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے قرآن پاک کی
सूरतें हर लफ्ज अपनी जगह अहम है। कुछ सूरतों को कुछ कामों में ज्यादा दखल है, जैसे हमारे रोजाना के पढ़ने में सूरह मुल्क आती है 29वां सिपारा तबारकल्लज़ी। सूरह मुल्क है, मुल्क बमाना बादशाही, ये क्योंकि रोजाना के मामूलात में पढ़ने में आती है, तो जब इसके मसाइल हमें पता होंगे, इसकी तफसीर, इसके मतालिब पता होंगे, तो इंशाअल्लाह पढ़ने में और भी सहूलत महसूस होगी। इसकी तफसीर कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही से कहने और सुनने की तौफीक नसीब फरमाए, उस पर अमल करने की वजह से हमारी सबसे पहले अल्लाह अपनी रजा का जरिया बना ले, फिर उसे हमारी दुनिया और आखिरत की निजात का जरिया बना ले। सूरह मुल्क के फजाइल में ये बात आती है कि इसको हदीस में वाक़िया, आइन के साथ में या के साथ वाक़िया और मुंजिया का लफ्ज़ कहा गया है। वाक़िया का मतलब बचाने वाली, मुंजिया का माना निजात देने वाली। और हदीस पाक में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत यानी कि तबारकल्लज़ी अजाब को रोकने वाली है और अजाब से निजात देने वाली है। ये अपने पढ़ने वाले को अजाब कब्र से बचा लेगी। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि सूरह मुल्क हर मोमिन के दिल में हो। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये फजीलत नकल की जाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, आपने फरमाया कि किताबुल्लाह में एक सूरत ऐसी है जिसकी आयतें तो सिर्फ 30 हैं, लेकिन ये क़यामत के दिन एक शख्स की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि इसको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर देगी, और वो सूरत तबारकल्लज़ी है। तो ये कुछ मुख्तसर से फजाइल थे। मुल्क बमाना बादशाही के, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बादशाही का जिक्र कर रहे हैं इसमें, और इंसान को ये दावत दे रहे हैं कि जब वो इतनी बड़ी कुदरतों का मालिक है तो इबादतों के लायक भी वो है, सजदों के लायक भी वो है, रब मानने के लायक भी वो है। सूरह मुल्क है, 30 आयत हैं इसकी, मक्की सूरत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। तबारकल्लज़ी, बड़ी बरकत है उस जात की, बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में बादशाही है, वो हुआ अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है। अल्लज़ी, वो खलक़ल मौता, जिसने मौत को बनाया, वल हयाता, और जिंदगी को बनाया, लियब्लुवकुम, ताकि वो आजमाइश कर सके तुम्हारी, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अच्छे काम कौन करता है। वो हुवल अज़ीज़, वो जबरदस्त है, अल गफूर, बख्शने वाला। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, वो बात जिसने बनाए 7 आसमान तह दर तह। मा तरा फी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, तो क्या तू देखता है रहमान के इस बनाने में कुछ फर्क। फर्जिइल बसर, फिर दोबारा निगाह कर। हल तरा मिन फ़ुतूर, क्या तुझे आसमान में कोई दरार नजर आती है, कोई शगाफ नजर आता है। तो मर्जिइल बसर, फिर दोबारा लौटा निगाह को, करवतैनी, 2 बार। यनक़लिब इलैकल बसर, तेरी निगाह लौट आएगी तेरे पास, खासिअन, रद होकर, वहुवा हसीर, और वो थकी हुई होगी। वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया, और हमने रौनक दी है आसमाने दुनिया को, आसमाने दुनिया जो हमें नजर आ रहा है, बिमसाबिहा, चिरागों से, वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन, और हमने कर रखी है इनसे फेंक मार पत्थर मारना जिसको कहता है, फेंक मार, लिश्शयातीन, शैतानों के लिए, वो अअतदना लहुम, और हमने तैयार कर रखा है उनके लिए, अज़ाब अस्सईर,
दहकती आग का आजाद। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बादशाही की बात कर रहे हैं। तबारकल्लज़ी, बरकत वाले है वो ज़ात। बरकत का मतलब वही है जो हम आम लफ्ज़ों में समझते हैं, किसी चीज़ का ज्यादा हो जाना, किसी चीज़ का बढ़ जाना। लेकिन ये लफ्ज़ जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान में बोला जाता है तो इसका मतलब होता है बरतर होना। बरतर, जैसे हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, बड़ा होना, बड़ी ज़ात वाला। तो यहाँ बरकत का माना बरतर होने के। तो अल्लाह ही के हाथ में बादशाही है। और ये कुरान में जगह जगह पर आता है कि अल्लाह के हाथ में बादशाही है, या अल्लाह की कुंडली, या कुछ भी ऐसे अल्फाज जिससे अल्लाह के लिए ऐसा महसूस हो कि वो ऐसे ही जिस्म और आज़ा वाला है जैसे हमारे हैं। तो ये आज़ा कैसे हैं, या ये जिस्मानी कैफियत कैसी है? ये हमारे आज़ा जैसे आज़ा भी नहीं और ये हमारी जिस्मानी कैफियत जैसी कैफियत भी नहीं। ये सिर्फ इंसान को समझाने के लिए, जैसे किसी इंसान की ताकत या उसके बस में कोई चीज होती है तो वो कहते हैं कि फलां मसला मेरे हाथ में है। अब हाथ का मतलब ये नहीं होता कि वो मसला उसके हाथ में होता, वो चीज से अपनी ताकत को जाहिर करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे ताकत के माना में है। और जहाँ कहीं भी ऐसे अल्फाज हैं कुरान के अंदर, इनको मुतशाबे अल्फाज कहा जाता है, जिनका मतलब अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं, तो उनके ऊपर ईमान लाना जरूरी है। उसकी बहस में जिंदगी को जाया करना अक्लमंदों का काम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुछ कह दिया, वो उसकी अपनी जात के बारे में है और वो उसकी कैफियत को बेहतर जान सकता है। हम अगर सारी जिंदगी लगा दें तो भी इस चीज को समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत के अंदर अपने लिए 4 सिफात का दावा कर रहे हैं। 4 सिफात का दावा कर रहे हैं।